So if you really want me to recollect that evening, I was very much into Trident just before 15-20 minutes of entire thing happens. And I was supposed to have a dinner with my friend who came from London, and we were supposed to have dinner in Kandahar at that time. And all of a sudden my friend called, why don't we sit in the Masala Club? He wanted to eat the Indian food, and we booked the Masala Club. And by the time I just left from Trident and I was on the gate of Taj, he said, I think I am not a good health. Being I stay in Kapre, and the moment I reached my home, I knew that in the entire, both the hotel Taj and Oberoi from where I just left before 5 minutes, that there is a lot of gang war happened. And the things started moving on, and it found that there's completely terrorist attack on both the hotels. So I really see like that event where a lot of friends were sitting in the Trident, and I cancelled that meeting. Could have lasted long. Issue was that I committed someone for dinner, so I cancelled all my meeting, and all my other friends from there, they were the part of Edelweiss team, they were sitting together. So all the people left. Even I remember one of my friends forgot the laptop. When he was taking out the laptop, that time he saw some people going inside, and by the time he was also out. So it was very, very horrible journey what I've seen that time, and I've seen many, many sounds for days because we are so close to both the hotels, and the city was completely silent. So today we are very happy that the people who are involved, they are coming back to India, and India is really all the people who got problem into this, many people died, they are getting justice today. Yeah, the mastermind behind this entire incident, Tahawul Rana, who was at US today, Yes. is coming back to India. So somewhere it's a happy moment for all of us. So it's really not a happy moment. It's definitely a moment where we have witnessed to entire this problem in the city of Mumbai, and we are very happy that after so long, at least we are getting justice. And it will send one more signal that the people who are involved to this kind of attack, they will think that they are not spared. They will always get justice. They will have to fall in line. Yeah. सर 26/11 जो है वो मुंबई ही नहीं पूरे भारत के इतिहास में ब्लैक डे माना जा सकता है, लेकिन उसके पीछे का मास्टरमाइंड जो है वो आज वापस आ रहा है भारत में यूएस से। तहव्वुर राना क्या? नहीं, देखिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट ने इतने साल तक इस मैटर को लाइव रखा। द कीप फाइटिंग, उन्होंने अपनी वेरी वेरी थैंक यू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा इनिशिएटिव लिया, और ये एक बहुत अच्छा हो गया कि जो आदमी इस काम के पीछे था, जिसने पूरा मास्टरमाइंड किया, वो वापस इंडिया में अपने कानून में आ रहा है, वो पूरी इसकी सजा लेगा। एक अच्छा मैसेज जा रहा है एंटायर वर्ल्ड, जो लोग ये ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए, और वो इस सजा से बाहर नहीं है। और आने वाले कोई भी जो लोग ऐसे अटैक करते हैं, वो इसके बारे में 10 बार सोचेंगे। साउथ बॉम्बे के अनेक परेड के रहवासी, और उस दिन जब 26/11 हुआ तो समवेयर यू वाज आल्सो ताज के पास थे, या फिर वो क्या घटना हुई थी उस दिन का क्या? देखिए, मैं उस समय ट्राइडेंट में था, मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ बिजनेस मीटिंग में था, और मेरा एक फ्रेंड लंदन से आया हुआ था। तो हमने डिसाइड किया था कि हम मीटिंग के बाद में विल हैव ए डिनर, हम यहीं पे कांधार में करेंगे। सब थोड़ी देर के बाद में मैंने मैसेज देखा कि उसने बोला क्यों नहीं हम ताज में डिनर कर लेते। तब उसको इंडियन खाना था, बिंग वो लंदन से था। मैंने मसाला क्राब बुक किया, और यहाँ से हम लोग का मीटिंग काफ़ी लंबा चलता था, बट बिकॉज ये मैंने डिनर फिक्स किया था, तो यहाँ से हम निकल गए। मैंने बाकी लोगों को भी बोला कि ये मीटिंग को अपन कल करते हैं। हमारे साथ ऑलमोस्ट 12-13 लोग थे, और मैं जैसे ही ताज के गेट पे पहुंचा, मुझे उसका मैसेज आया कि मुझे हेल्थ का इश्यू हो गया, तो आई थिंक कैन वी ये डिनर हम कल कर लेंगे। और वहीं से मेरा घर आई थिंक 5 मिनट था, मैं घर पे पहुंचा, और मेरी एक आदत है घर जाते एक न्यूज चैनल चलाने का। तो जैसे ही मेरे को लगा कि ये अटैक हो गया, तो इट वॉज पहले ये बताया गया था कि ये गैंग वॉर हुआ। तो मेरा जो फ्रेंड था, मैंने उसको फोन किया कि तू एक जना रुक गया। तो बोला मैं टाइम जस्ट निकला हूँ, हमने कुछ लोगों को अंदर भागते हुए देखा है। इधर ट्राइडेंट के एंट्री गेट पे ही हम लोग खड़े थे, तो उसका लैपटॉप यहाँ रह गया था, और वहाँ से लेके नेक्स्ट 10 दिन तक ये सिटी पूरा साइलेंस हो गया था। एवरी अटैक, एवरी डोर जो यहाँ से खुलता था, उसकी आवाज़ हमको कब तक आती थी। तो ये आई थिंक ऐसा कोई मुंबई का नहीं होगा जो इस इंसिडेंस को भूल पाएगा। ये इंडिया बॉम्बे में नहीं हुआ, ये पूरे इंडिया के ऊपर अटैक था, और उसका जो मास्टरमाइंड को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस लेके आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और मुझे लगता है कि ऐसे अटैक करने वालों को अगर ये सज़ा मिलेगी, तो आने वाले टाइम पे ऐसा करने की कोई जरूरत शायद नहीं करेगा।